Hello dear children, good morning. Children, today we are going to study chapter number 3, Understanding Windows 7. Students, you have been studying about Windows 7 since you were in class 3rd. So you must be familiar with the Windows 7 and have also known about the basics of the Windows 7, that it is an operating system. But in this chapter, we are going to read further more about Windows 7, and let's see that what we're gonna cover up in this chapter. So we gonna cover up icons, Windows 7 accessories, control panel, various operations, setting desktop background, selecting screensaver, changing window color. So all of these things we are going to study about. Now let's have the reading. Windows is an operating system introduced by Microsoft. An operating system is a collection of programs that control the application software and provides a link between the hardware and software. It is also an interface between user and computer. Students, in our previous chapter, we have studied that there are two types of software. Do you remember? Try to recall that. दो तरह के सॉफ्टवेयर. द फर्स्ट वन इज टेल मी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Correct? So in system software we first have operating system. So now here we are reading that Windows is an operating system. So now you can understand that Windows is an operating system and it is a part of system software, right? And it is in Microsoft. Okay, and who is the founder of Microsoft? You should know, that is Bill Gates, right? Now what is an operating system? Try to recall that again. An operating system is a collection of programs. I told you earlier also that is a collection of program means that it is a collection of instructions, correct? And the main function of operating system, or you can say the Windows 7, is to control the application software and provides a link between the hardware and software. Children, do you remember that I had given you an example of a driver, that whenever you hire any car or taxi, then you give the instructions to the driver. जब आप किसी कार या टैक्सी को हायर करते हो तो उस ड्राइवर को आप इंस्ट्रक्शंस देते हो ताकि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सके. इस बीच वो क्या करता है, वो ड्राइवर सारी एक्टिविटीज़ को, यानी कि कार चलाने की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक controlling the brakes and moving the steering and then accelerating, everything he controls over there while riding a car. तो कार ड्राइव करते टाइम वो ये सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है. तो सिमिलरली इसी तरह से जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में होने वाली ओवरऑल एक्टिविटीज़, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपने अभी पढ़ा है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो भी क्या करता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को. एंड इट इज़ ऑल्सो अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और ये हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर्स के हैं, जैसे कि आपको जो बाहर पार्ट्स दिखाई देते हैं, डिवाइसेस दिखाई देते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो क्या है, हार्डवेयर है. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर के इंटरनली जो अंदर प्रोग्राम्स मौजूद हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो इन दोनों के बीच में लिंक का काम, लिंक मीन्स क्या होता है, जोड़ना. जैसे किसी तरह से किसी चीज़ को जंजीर से जोड़ देना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ देता है, आपस में कनेक्ट कर देता है, लिंक बना देता है, जिस वजह से जो यूज़र होता है उस कंप्यूटर पे ईजिली वर्क कर पाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. यूज़र क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूज़र हम हैं, यानी कि वो पर्सन है जो कंप्यूटर पे वर्क करता है, उसे ही हम यूज़र कहते हैं. तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच भी एक लिंक का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है, राइट? तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम
and it is introduced by Microsoft. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनके बीच और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच लिंक का काम करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप डिटेल में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हो चैप्टर 2 में, राइट? अगर आपको दोबारा से पढ़ना है, यू कैन गो बैक थ्रू दैट. नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी the interface of Windows 7 through this picture. Okay, now here you can see the picture. These are some small icons. Here is the desktop. What is desktop? जब भी आप विंडोज़ बटन या स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू, तो आपके मॉनिटर पे जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देती है मॉनिटर पे उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं. ओके, सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ विंडोज़ एंड दीज आर सम स्मॉल आइकन्स एंड शॉर्टकट आइकन्स. देन देयर इज़ एप्लीकेशन, there are applications over there, and there are taskbar. This is called taskbar. This is start button, and here is the picture of Windows. These are small icons, and this is called desktop. Okay, hope you have got it. Now Windows 7 की बहुत सारे फीचर्स है. फीचर्स मीन्स विशेषताएं. Windows 7 is better than other versions of Windows in terms of functionality. It is more user friendly. The best thing is that it is more user friendly. Windows 7 के बहुत सारे वर्जन्स हैं, आपने पहले पढ़े हुए हैं, जो पहले आ चुके हैं, like Windows 97, 98, and then we have Windows 7, Windows 8 and Vista also. So इन सब में Windows 7 क्या है? बहुत ही ज़्यादा बेटर वर्जन है बाकी इस विंडोज़ के जो वर्जन्स हैं उनमें, क्योंकि Windows 7 की जो फंक्शनैलिटी है मीन्स जिस तरह से वो वर्क करता है वो बहुत ही ईजी है, और यूज़र जो इतने होते हैं वो विंडोज़ 7 पे बहुत ही आराम से ईज़िली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू वर्क करना बहुत ही ईजी हो जाता है. और हमारे पास विंडोज़ 7 में कई सारे दूसरे फीचर्स हैं, जैसे कि ये बहुत ही फास्ट है, फास्ट स्पीड में आपको डेटा प्रोसेस करके रिज़ल्ट देता है. सेकेंडली ये बहुत ही रिलायबल है, मीन्स बहुत ही एक्यूरेट आपका रिज़ल्ट होता है और ये रिलायबल भी होता है. नेक्स्ट, आपको मोर सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है. जितने भी आप पासवर्ड चाहो, फाइल्स को लॉक करना चाहो, हाइड करना चाहो, तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे मौजूद हैं? विंडोज़ 7 में. ओके, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द बेटर वर्जन ऑफ विंडोज़. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर and let's read about icons. You have just seen the pictures of small icons on the desktop. अब ये icons क्या होते हैं? Icons are small images which briefly describe the file or the program. They also act as a short way to open the program just by double clicking it. तो icons क्या होते हैं? Let me show you again so that you can got it better. Okay, so here now you can see these are icons. ये सारे क्या हैं? These are icons. Okay, these are icons. So now you can see that these are small images. ये क्या है? छोटी छोटी images होती हैं, छोटी pictures होती हैं. और ये क्यों हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखती हैं? क्योंकि ईज़िली हम इससे जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल फोल्डर या दूसरे एप्लीकेशंस हैं उनको हम बहुत ही ईज़िली ओपन कर सकते हैं. यहाँ से हम आप एक्सेस कर सकते हैं उनको ईज़िली. किस तरह से? जस्ट बाय डबल क्लिकिंग इट. आप कर्सर को इस पे लेके जाओ माउस के थ्रू, देन डबल क्लिक इट. जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा? इट गेट्स ओपनड. ओके, तो वो खुल जाएगा. तो इस तरह से ये जो स्मॉल इमेजेस हैं जिसको हम आइकन्स बोलते हैं वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम भी बचाते हैं और बहुत ही डायरेक्टली हम वहाँ पर एक्सेस कर जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो वर्क है वो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ होता है. राइट, लेट्स गो फर्दर.
There is another one that is called computer. कंप्यूटर आइकन, कंप्यूटर आइकन इस तरह का दिखता है, ये भी डेस्कटॉप पे आप देख चुके होंगे many a times. Now it shows you the various drives present in your computer like local disk C. To open them you have to double click on them. तो कंप्यूटर आइकन बहुत ही यूज़फुल आइकन है क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी डिस्क और जितनी भी फाइल या फोल्डर्स आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं सबका आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है. ओके इसको आपको ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है और जैसे ही इस पे भी आप कर्सर के थ्रू डबल क्लिक करोगी ये ओपन हो जाएगा और फिर आप अपने इसके अंदर जो डिस्क ड्राइव्स हैं उन तक आप आराम से रीच कर सकते हो. वहाँ पहुंचकर अपनी फाइल या फोल्डर्स को इजीली ओपन कर सकते हो सर्च करके. तो आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है कंप्यूटर आइकन के हेल्प से. ओके नाउ नेक्स्ट अप इज़ रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन बहुत ही ईजी है. रिसाइकल बिन यू हैव आई थिंक अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इट मीन. इसका मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट राइट इट इज़ लाइक ए डस्टबिन फॉर द कंप्यूटर विच कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स. When you delete a file, it is moved to the recycle bin. This allows you to recover the file. If you change your mind to permanently delete the file, you will need to empty the recycle bin. तो बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो अब काम के नहीं हो जाते हैं एक टाइम के बाद. बहुत सारे फोल्डर्स ऐसे होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं. अब उनके अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर नॉट यूज़फुल बाय द टाइम. तो बहुत बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ तो हम उनको डिलीट कर देते हैं. ठीक है, डिलीट करने के बाद क्या होता है ये सब कुछ कहाँ जमा हो जाते हैं? रिसाइकल बिन में. रिसाइकल बिन में वो एक डस्टबिन की तरह काम करता है. जैसे हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हम उसमें फेंक देते हैं उसी तरह से सारे डिलीटेड इमेजेस, फाइल्स, फोल्डर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ किसके अंदर चले जाते हैं? इसी डस्टबिन के अंदर. लेकिन सिर्फ रिसाइकल बिन में जाने से वो परमानेंटली डिलीट नहीं होते हैं जब तक कि हम रिसाइकल बिन को खाली ना करें. लाइक आपने कचरे तो फेंक दिए, मीन्स जहाँ से उठाए थे, लाइक किसी भी शेल्फ से या कोई किसी भी अलमीरा से, तो वहाँ से उठा के अपने रिसाइकल बिन में फेंक दिए. लेकिन अभी भी रिसाइकल बिन में वो है राइट. लेकिन एक बार अगर आप अपने डस्टबिन को खाली करते हो तो क्या होता है उसमें से वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गार्बेज होता है, जो कचरे होता है, वो क्या होता है हमेशा के लिए फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो सिमिलरली रिसाइकल बिन को जब आप एम्प्टी करते हो मीन्स खाली करते हो तो सारे डिलीटेड फाइल या फोल्डर्स जो उसमें मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं? परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम जो फाइल या फोल्डर्स डिलीट करते हैं वो कई बार मिस्टेकनली कर देते हैं, गलती से कर देते हैं. तो हमें दोबारा से उसको रीस्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए रिसाइकल बिन एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है आपके पास कि आप अगर आपने गलती से कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर फाइल या फोल्डर या इमेजेस डिलीट कर दिया है तो उसको वापस से स्टोर कर सकते हो. डैट इज़ कॉल्ड रीस्टोरेशन. ओके, इसके लिए आपको क्या करना होता है? डू यू रिमेंबर दैट? इसके लिए आपको रिसाइकल बिन के अंदर जाना है और उसमें से अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करना है. जिस भी फाइल या इमेजेस एनीथिंग जो भी आपको वापस से रखना है उस पर आप जाइए, राइट क्लिक ऑप्शन कीजिए और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा उसमें रीस्टोर का, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और वो आपका जो भी आइटम है दोबारा से उसी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा जहाँ से वो डिलीट हुआ था. ओके, now let's go further and read about Internet Explorer. Internet Explorer, here you can see in the picture, it looks like that. Okay, now Internet Explorer, it lets the user open a web page and directly connect the internet. Internet Explorer आप इसके नेम से ही समझ सकते हो ये किसके काम आता है? इंटरनेट चलाने के. तो आपको अगर किसी भी वेबसाइट को सर्च करना है या इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप क्या करोगे? सिंपली इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करोगे. ये
आप ओपन करते ही इसमें आप सर्च बार में कुछ भी सर्च इंजन में जाके जो भी वेबसाइट आपको चाहिए वो आप सर्च करोगे और उस पर आपको वेब पेज जो है उसका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्टली कहाँ किससे कनेक्ट कर देता है, इंटरनेट से यूज़र को कनेक्ट कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अप इज शॉर्टकट आइकन्स। आपने स्मॉल आइकन्स जो कि डेस्कटॉप पे मौजूद होते हैं उसको देखा, वो आइकन्स अलग हैं, लेकिन शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं? इट इज़ डायरेक्ट रूट टू ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इट हैज़ ए जंप एरो ऑन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। शॉर्टकट आइकन्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर मीन्स एक खास करके कोई जो एप्लीकेशन आपका बना है, जैसे आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ा है होगा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, करेक्ट? तो इसी तरह से जो पर्टिकुलर ऑप्शन है उसका जो आइकन है वो डेस्कटॉप पे जब आता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट आइकन, उस पर आप जब डबल क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली आपको कहाँ लेके चला जाता है? उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे लेके चला जाता है। एज लाइक आपने कोई वर्ड पैड ओपन करके रखा हुआ है, तो क्या होगा, आप जैसे ही शॉर्टकट आइकन पे जाओगे डेस्कटॉप पे और उस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली कहाँ एक्सेस हो जाएगा? उसी वर्ड पैड पे। ओके, now next up we're going to read about Windows 7 accessories. You are already familiar with Windows 7 accessories. Let us learn to use some of the useful accessories, that is called calculator, sticky note, notepad and wordpad. Windows 7 में accessories means क्या होता है? बहुत सारी जो वस्तुएं आप यूज़ करते हो, तो इसी तरह से Windows 7 में भी बहुत सारी यूज़फुल एक्सेसरीज़ हैं जिनके हमें डेली टू डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नीड हो जाती है, ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, स्टिकी नोट, नोटपैड, वर्डपैड, इन सब की हमें डेली ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है विंडोज़ 7 में। नाउ लेट्स सी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, you must be aware of it. You might have seen your father using a computer calculator at home. It is used to do complex calculations. You can also learn to use it on a computer. तो कैलकुलेटर क्या है? ये एक एक्सेसरीज़ है विंडोज़ 7 की जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा आपके पापा, डैडी और फिर घर के बड़े लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। तो अब क्योंकि ये दिया हुआ है आपके विंडोज़ 7 के साथ ही दिया हुआ है, वन ऑफ इट्स फीचर्स यू वुड से, तो सिंपली आपको घर बैठने कंप्यूटर पे वर्क करने में अगर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो सिंपली आपको कैलकुलेटर साइड में उसी विंडोज़ पे ओपन करना है और जितने भी जटिल से जटिल मीन्स मुश्किल से मुश्किल जो भी कैलकुलेशंस है आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, देयर आर सम स्टेप्स टू फॉलो। व्हाट आर दीज स्टेप्स? लेट्स सी। द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक स्टार्ट बटन। Step 2 is click accessories in all programs. So let's try to understand these steps through this image. Now step 3rd is click calculator under accessories. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको स्टार्ट बटन जो कि विंडोज़ बटन होती है यहाँ पे वो क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ आना है। सेकेंड स्टेप आपको एक्सेसरीज़ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे दिख जाएगा आपको मेन्यू में। उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सेसरीज़, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसमें आपको दिख जाएगा कैलकुलेटर और नोटपैड, पेंट, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस। तो इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है? कैलकुलेटर को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करना है। ओके, ये करने के बाद विंडोज़ 7 कैलकुलेटर इज़ डिस्प्लेड टू यूज़, और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, क्लिक करोगे, आपके सामने ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। प्लस सिंबल इज़ यूज टू ऐड, एवरीवन नोज दैट। माइनस सिंबल इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 or more numbers. Okay, now let's go further. Sticky notes. What is called sticky notes? You can use sticky notes to write to-do list, to write down a list of phone numbers,
or to do anything else that you would use a pad of paper for. तो स्टिकी नोट्स, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाते हो, बहुत सारी आपको लिस्ट बनानी है, तो आपको आप क्या करते हो जनरली, अगर आप हार्ड कॉपी पे कर रहे हो तो आपको पैड की ज़रूरत पड़ती है, पेपर की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आप उस पर लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो इसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके विंडोज़ 7 में ये फ़ीचर मौजूद है। आपको क्या करना है, इस तरह से आप जैसे ही स्टार्ट बटन ओपन करते हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप भी सेम है, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, सब मेन्यू दिखेगा आपको। सब मेन्यू मीन्स जो मेन्यू के अंदर मेन्यू होता है उसको बोलते हैं। और स्टेप थर्ड में एक्सेसरीज़ के अंदर स्टिकी नोट्स को आप क्लिक करोगे। ठीक है, स्टिकी नोट्स आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख जाएगा, और इसमें आप बहुत सारे जितने भी फ़ोन नंबर्स, अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है या किसी भी तरह की जो लिस्ट बनानी है, कुछ काम करने हैं उसकी लिस्ट बनानी है, कोई आपको शेड्यूल मीटिंग है और उसकी लिस्ट बनानी है, या किसी भी तरह की, एनीथिंग इट कुड बी, तो फिर ये स्टिकी नोट्स आपके काम आते हैं, राइट। लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट अप इज नोटपैड। ओके, बिफोर दैट there is one line we should read, that click on plus sign on the sticky note to add new note. Okay, click cross to delete in any sticky note. तो स्टिकी नोट अगर आप बना लेते हो, अगर बहुत सारी लिस्ट बना ली है आपने और उसके बाद आपको डिलीट करना है किसी भी स्टिकी नोट को, तो आप क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसी तरह से अगर आपने एक बना ली है और भी आपको और ज़रूरत है स्टिकी नोट्स की, तो आप प्लस वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे, राइट। ओके, नेक्स्ट अप इज नोटपैड। नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम इन विंडोज़। यू कैन क्रिएट, edit and print a document file with some of the simplest formatting features. You can also save it for future references. तो नोटपैड क्या है, नोटपैड भी जैसे आपकी कॉपी होती है उसी तरह से एक नोटपैड होता है। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ ए नोटपैड। इस पर आप क्या करते हो, टेक्स्ट लिखते हो टाइपिंग करके। अगर आपको कुछ भी लिखना है, चाहे वो एसेज हो या कोई भी आर्टिकल लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, एनीथिंग जो भी आपको लिखना है आप नोटपैड पे सिंपली कर सकते हो। ओके, और सिंपल डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं नोटपैड पे हम, मीन्स इसमें आप इमेजेस वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते हो, सिंपली आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, और इसमें फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। नाउ स्टेप्स टू यूज़ नोटपैड। नोटपैड यूज़ करने के क्या स्टेप्स हैं, लेट्स सी। स्टेप्स टू यूज़ नोटपैड: क्लिक स्टार्ट बटन, select all programs, a sub menu appears, then click on accessories, then click on notepad. So almost ये तीनों के ही आपके स्टेप्स सेम हैं। ओके, आई थिंक आपको अब तक लर्न भी हो गए होंगे ये तीनों ही स्टेप। ओके, नेक्स्ट अप इज़ वर्डपैड। वर्डपैड इज़ a text editor program. It has more features than notepad but lesser than MS Word. अब ये वर्डपैड क्या है, वर्डपैड भी नोटपैड की तरह ही होता है। वर्डपैड आपको थोड़े से और ज़्यादा फीचर्स देता है, थोड़ी इसमें और अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आपको मिल जाती है लिखने के लिए, टाइप करने के लिए टेक्स्ट को। ये नोटपैड से तो बेहतर है, लेकिन आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उससे थोड़ा ये कम है। ओके, मीन्स कम यूज़फुल है, या फिर उसमें फीचर्स आपके कम हैं इन कंपैरिजन टू MS वर्ड। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। स्टेप्स टू यूज़ वर्डपैड: फर्स्ट वन इज क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, a sub menu appears, click on accessories, then click WordPad. So again the same steps are given. तो आपको सबसे पहले सब में ही स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। स्टेप थर्ड में आपको जो भी ओपन करना है प्रोग्राम वो काम करना है, जैसे कि आपको अगर कैलकुलेटर चाहिए तो कैलकुलेटर चूज़ करना है, नोटपैड चाहिए तो नोटपैड, स्टिकी नोट्स चाहिए तो स्टिकी नोट्स। इसी तरह से अगर आपको वर्डपैड चाहिए तो वर्डपैड पे आप क्लिक करोगे। गॉट इट? देयर इज़ द पिक्चर ऑफ वर्डपैड।
Okay, now there is given some important lines for you that what is difference between notepad and wordpad. सी आप बोलोगे नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, वर्डपैड भी लिख सकते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का. लेट्स रीड दैट. नोटपैड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्स्ट एडिटर. It can only format fonts and its sizes, whereas WordPad gives you more formatting options such as bold, italic, formatting, change font, size and color of the text. You can create bullets and give alignments to your text. You can also incorporate images into WordPad. WordPad lacks features such as spell check, thesaurus and inserting tables. तो नोटपैड और वर्डपैड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नोटपैड तो सिंपल, इस पर आप सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो और इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ फॉन्ट्स से को ही फॉर्मेट कर सकते हो आप, मीन्स उसको आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बस इतने ही आपको फीचर्स मिलेंगे. लेकिन वर्डपैड पे इससे कहीं ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, मीन्स मोटे अक्षरों में लिख सकते हो, और इटैलिक कर सकते हो, तिरछा लिख सकते हो. इसी तरह से अलाइनमेंट दे सकते हो आपकी कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये सारे फीचर्स भी आपको वर्डपैड में मिल जाते हैं. इसी तरह से आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, साइज़ में चेंजेस कर सकते हो, कलर में चेंजेस कर सकते हो. साथ ही आप इसमें बुलेट्स दे सकते हो. बुलेट्स क्या होती है, जब हमें किसी भी इम्पॉर्टेंट नोट को लिखना होता है लाइन वाइज, तो हमें बुलेट्स की इस तरह से ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो ये भी इसमें दिया हुआ होता है. लेकिन इसमें कुछ फीचर्स नहीं मौजूद होते हैं जो कि MS वर्ड में होते हैं. वो क्या है, ये स्पेल चेक नहीं करता, यानी अगर आपने कुछ रॉन्ग लिख दिया है ग्रामेटिकली तो इसमें आपकी स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन नहीं है. ना ही आप इसके अंदर कोई भी टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो. ओके, सो दैट इज़ the difference between notepad and wordpad. Hope you have got it everything. I'll see you with another video